what happened in Kashmir then, it would send shivers down your spine. Then came CAA, NRC, Article 14 ची पूर्ण वाट लावली. Triple Talaq, good decisions made by BJP was so rushed that even they have tons of loopholes. PM cares gafla, Yes Bank gafla, PNB gafla, RBI gafla, migrant workers gafla. You know what the condition of migrant workers was in the past 2 months? There have been people that have died of dehydration walking on roads for multiple hours and kilometers at a stretch. There have been people who have been living without food, away from their families, just because a decision taken by our PM could not be done in a systematic manner. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक नंबर भार। तो मैं आगे एक वीडियो लगा दूंगा, वो प्लीज़ पूरा देखना, आपको समझ में आएगा कि क्यों सब लोग मोदी जी से क्यों चलते हैं और क्या रीज़न है उसके पीछे। एक हिंदू लड़की है, मराठी बोलती है वो, उसकी इंग्लिश सुपर्ब है, इंग्लिश में थोड़ा वीडियो है तो आप लोग प्लीज़ समझ लेना। थोड़ा इंग्लिश वीक रहेगा तो मेरी तरह, मेरा भी इंग्लिश वीक है, तो प्लीज़ समझना और आपको देख के खुद ही समझेगा कि वो जो पॉइंट्स बोलेगी ना, वो पॉइंट्स पे प्लीज़ गौर करना, आपको समझ में आएगा कि सब लोग मोदी जी के अगेंस्ट क्यों है। इतने सारे लोग, बहुत सारे उनके सपोर्टर्स भी है, लेकिन मोदी जी के अगेंस्ट क्यों है। लॉजिक यूज़ करना आप लोग। तो बेसिकली वो वीडियो में बोलती क्या है पता है कि कोई भी अगर मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं, और ये वो जो भी है कुछ कितना घोटाला किया है और क्या किया, उसके पास बहुत दिमाग है, वो क्या बोलती है उसकी बातें सुनो। Okay, initially in 2014, when BJP walked in with their agenda, I was thoroughly convinced. They seem to have a strong leader, great orators and big plans that look like they would change India for the good. And the whole backdrop of I was a chai wala and I've worked my way to becoming a PM was very heroic and relatable to most people throughout India. I mean, we really do buy into Bollywood narratives. And even media was covering this party in a very all unicorns and rainbows manner. So I think everyone, including me, bought into it. And I have grown up in my family in a very Hinduism-ish atmosphere, which means all the shloks from the Ganpati Stotra to the Maruti Stotra to the Atharva Shisha to the Vishnu Sahasranam to the bhajans, abhanga, shlok, Gayatri Mantra, सगळं तोंडपाठ आहे मला. म्हणजे मी टिपिकल कोकणस्थ ब्राह्मण आहे. But being a Hindu, it really pricks me to see that people have stopped realizing the very broad line between Hinduism and Hindutva. These are two very different things, and Hindutva causes harm. I've heard of mob lynchings, casteism, real Islamophobia, how riots play out, fake history, all of which was put forth by the BJP. So I became anti-BJP. I may be anti-BJP, but I'm not anti-national. And then came demonetization. So if any decision, कुठलाही निर्णय जर भारताच्या हितात घेतलेला आहे तर तो मला आवडेल. But demonetization was so rushed, it had multiple flaws. The GDP fell. The rich and upper middle class may not have been affected because we are sitting in our air-conditioned homes. But the poor were the ones who face the brunt of all of this. India is not even close to being cashless. The black money may have gotten eradicated temporarily, but trust me, it's back. Terrorism still continues. So all vague points earlier put forth by BJP in support of this had completely failed. So people defend this by saying, "ठीक है ना यार, intention अच्छा था." Though I do not completely agree with that mentality, because he is the PM of a nation and whatever he does, his decisions affect 135.28 crore people in India. There was a sharp rise in farmer suicides post demonetization. Then came Article 370. If you guys even read up a bit on what happened in Kashmir, then it would send shivers down your spine. Then came CAA, NRC, Article 14 ची पूर्ण वाट लावली. Triple Talaq, good decisions made by BJP was so rushed that even they have tons of loopholes. PM cares gafla, Yes Bank gafla, PNB gafla, RBI gafla, migrant workers gafla. You know what the condition of migrant workers was in the past 2 months? There have been people that have died of dehydration walking on roads for multiple hours and kilometers at a stretch.
There have been people who have been living without food, away from their families, just because a decision taken by our PM could not be done in a systematic manner. Reporters are getting killed. Reporters who speak up against this are getting killed. Contradicting statements made by Modi all the damn times. He comes onto the TV, he blabbers something, goes away, but nothing he says ever happens. He is like a South Indian hero in some Indian movie, just all talk and no action. But अगर मैं ये सब बोलूं तो मैं अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग वाली रंडी, या एंटी नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एक नंबर बाय। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, भारत विश्वगुरु बनाने चले हैं। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। पनौती है मोदी जी। घर में थे तो घर में इनके पिताजी मर गए। जसोदाबेन जी से शादी हुआ तो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। गुजरात में थे, गुजरात जल रहा था। देश में आए, देश जल रहा है। आज देश को जसोदाबेन बना दिया। देश की जनता ने सुहागन है, विधवा घूट घूट कर मरने पर विवश है। देश को चले थे जापान बनाने, बना दिए नेपाल। इनके गोबर पात्रा कहते हैं हिंदू वो एक हो जाओ, हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। इन भाजपा के गंवार नेताओं को कौन समझाए? ये किसी के सगे नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4-4 पुस्तों की कमर तोड़ दी, आतंकवादियों के कमर टूट गए। देश ने देखा है नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। वो आज भी करा रही है, झुक कर चल रही है। और देश की दलाल मीडिया ऐसे चुप है जब मानो या तो गूंगे हो गए, और नहीं तो इन्होंने सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी लिया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश की दलाल मीडिया का, पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। लोगों ने मांगा रोजगार तो कह दिए मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर, और जिसने रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट और 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का घड़ी या 1.25 लाख का कलम रख के कहते हैं मैं तो फक्कर फकीर, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। उत्तर प्रदेश आप देखिए आपराधिक गढ़ बन चुका है। उत्तर प्रदेश को योगी जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसको आपराधिक गढ़ ही कहते हैं। आए दिन आप देखिए कानपुर जो कांडपुर बना हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं। पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। आम जनता की तो छोड़ दीजिए, आम जन तो छोड़ दीजिए, पुलिसकर्मी, हम परेशान होते हैं ना हम जिंदगी में, तो हम पुलिस के पास जाते हैं मदद मांगने। वो पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। कैसे बाबा है ये, कैसे योगी जी है ये? इन सरकार को दिखाई नहीं देता, अपराध दिखाई नहीं देता। महिला सुरक्षित नहीं, पुरुष सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, किशोरी सुरक्षित नहीं। इनको अपराध दिखाई नहीं देता। इनको मोह माया है, अभी भी इनको सत्ता पाना है। और मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती है, जितने भी बीजेपी में सबसे ज्यादा आप देख लीजिए भगवा धारण करके फिर ये राजनीति करते हैं। ये क्या मामला होता है भाई? राजनीति करना है तो बिल्कुल पैंट शर्ट पहनिए, सिंपल सिंपल कपड़े पहनिए। भगवा धारण करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो वर्षों से हमारे मन में हमेशा ही था कि जो भगवा धारण करता है वो तो भगवान का नाम लेता है, शांति की बात करता है। लेकिन यहां तो उल्टा है ना। बीजेपी तो हमेशा उल्टा करती है ना, जो बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है वो बोलती नहीं है। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है इनका, है ना। अब मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी को कल ही मैंने सलाह दी थी कि मोदी जी आप जो है याददाश्त शक्ति तेज करने के लिए बादाम खाइए। ये 56 इंच की जबान से 56 भोज जो अब लपालप खा रहे हैं, मशरूम से अपना पेट भर रहे हैं बिल्कुल। पहले के आप मोदी जी देखिए अलग चेहरे था, अब देखिए इनका चेहरा ही अलग है, बिल्कुल लाल चेहरा, सफेद फेरन लवली लगाया हुआ, मशरूम से भरा पेट आगे आ रहा है। ये योगा कर रहे हैं। ये कहते हैं योगा करो योगा करो। झूठ बोल रहे हो जनता से। योगा करने के बाद आदमी तगड़ा हो जाता है, पेट आगे आ जाता है क्या? जनता घाम
अनाज खा रही है, सब पता चलता है। लेकिन राहुल गांधी रोड पे उतर के क्या कर रहे हैं? फिल्म बना रहे हैं। आप सरकार की दलाली में इतने मशगूल हैं, देश की दलाल मीडिया के पत्रकारों का स्तर इतना गिर गया जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा। कहीं से भाजपा का एक नेता का वीडियो बता दीजिए, आरएसएस के नेताओं का, जो किसी ने किसी गरीब को एक चप्पल पहनाया हो, किसी गरीब के लिए ट्रेन की व्यवस्था की हो, किसी गरीब के लिए 24 तारीख को सैलरी मिलती है क्या देश में? किसी मजदूरों को किसी कंपनी का बिल मिलता है क्या? आपने अनावश्यक जिस तरीके से रात में उल्लू बोलता है, प्रधानमंत्री जी जब भी रात में 8 बजे बोलते हैं लोगों को डर सा लगता है। हमारे पूर्वज कहते थे उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री भी उल्लू की तरह रात में बोलते हैं तो देश में बुरा होता है। चाहे नोटबंदी का मामला हो, देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, माइनस में जीडीपी आ गया, जीएसटी लाया, व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई, हमारे देश के युवाओं